आप सभी को हेलो, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. With whatever you are comfortable, I, Medhavi Nigam, welcome you all to your own channel, Achievers Success Mantra. I hope you all are doing well by the grace of God. In our last session, we have discussed about fundamentals of data communication, networks, its benefits and disadvantages, types of networks, components of networks, internet, advantages and disadvantages of internet. I hope you are clear about each and every concept. Today we will discuss about some other topics of network fundamentals, that are components of internet, www, that is your world wide web, www versus internet, internet terminology, getting access to internet, internet connectivity options through dial-up connection, through broadband connection, and through wireless connection. So these are the three topics that we will cover under internet connectivity options. And the last is data transfer on the internet. So let's start with our first topic, that is components of internet. अगर हम components of internet की बात करें, the most common component of internet is your www, that is considered as your world wide web. ये एक सबसे ज़्यादा common और सबसे important component है internet का. And the other components are, first is your forums. Forums are what? These are the places where people can seek help and advice about a topic. ये वो एरियाज होते हैं या वो पर्टिकुलर साइट्स होती हैं नेट पर जहाँ पर लोग अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं और उस प्रॉब्लम के ऊपर वो किसी की हेल्प या एडवाइस ले सकते हैं. देन इज रिसर्च डेटाबेसेस. रिसर्च डेटाबेसेस हमारे यूनिवर्सिटीज़ या बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं. Third is Usenet. Usenet is especially your discussion groups that are about a specific subject. Discussion groups होते हैं जो कि एक particular subject के बारे में होते हैं. From the latest boy band to favorite pets, जो कि कोई बॉय बैंड नया आया है या कोई फेवरेट पेट के बारे में है, जैसे कि आपके गूगल ग्रुप्स, तो उनके अंदर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं. देन इज योर ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम्स. इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक. ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. एंड लास्ट इज योर टेलनेट. टेलनेट हमारा एक रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल होता है. गोफर, it is a text menu driven interface, and FTP, that is your file transfer protocol. So these all are the components जिनसे हमारा इंटरनेट बनता है. नेक्स्ट इज www. जैसा कि अभी हमने जाना कि जो www है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन कंपोनेंट है इंटरनेट का. It is also most popular and promising method of accessing the internet. ये सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा promising मेथड, अच्छा मेथड है किसी भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए. आप कहीं से भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. wherever you are in the world, in any corner, you will be able to access internet. If we talk about the proper definition of www, that is, it is a set of protocols, programs, etc. ये protocols और programs का एक set होता है, एक group होता है, that help us in displaying data and information, जो कि data और information को display कराने में हमारी मदद करता है. किस पे? इंटरनेट पे. So our data and information both comes under multimedia files. ये दोनों के दोनों multimedia files के अंडर में आते हैं. Now you will ask that मैम multimedia files क्या होती हैं? हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, but what actually multimedia files are? So if you have to define multimedia files, how you will define them? The documents that contain a combination of
video, audio, photographs, etc. are known as multimedia files. वो डॉक्यूमेंट्स जो अपने में टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, फोटोग्राफ्स इन सब का कॉम्बिनेशन रखते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं, दे आर नोन एज योर मल्टीमीडिया फाइल्स. कॉमनली योर वर्ल्ड वाइड वेब इज नोन एज द वेब. अगर हम कॉमन नेम से जानना चाहें कि कॉमनली वर्ल्ड वाइड वेब को किस नाम से बुलाया जाता है, दैट इज द वेब. It was proposed by Tim Berners-Lee in 1989. 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने पहली बार इसका प्रपोजल सामने रखा था और 1990 में ये एक रियलिटी बन गई थी. It means the people, the common public started using World Wide Web with the help of HTML and text browser. HTML एक ऐसी लैंग्वेज होती है that helps in designing of web pages and a text browser that helps in searching the information. It acts as an information retrieval system. ये नेट पर किस तरीके से काम करता है, एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के तौर पे, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन कहीं से भी ले सकते हैं. एंड इट ऑपरेट्स विद इन बेसिक क्लाइंट सर्वर फॉर्मेट, और एक क्लाइंट सर्वर फॉर्मेट के ऊपर काम करता है. हमने पिछले सेशन में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था कि और हमने पढ़ा था कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर. सो अवर वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली वर्क्स ऑन दिस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. और यू कैन से दैट www इज अ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कि आपका जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये एक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और ये स्पेशली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है. यानी कि इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं, जो भी आपको इसमें देखने को मिलता है, जो भी आपको डिस्प्ले कराता है, एवरीथिंग यूजेस व्हाट, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. सो यू कैन सी दैट हाउ योर वर्ल्ड वाइड वेब works. Let's open Google Chrome. Google Chrome is our web browser. Whenever you open a website, मान लीजिए अगर आप google.com भी ओपन कर रहे हैं, every site in front of it has what, www. अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए हर एक साइट के फ्रंट में क्या होता है, 3 W's are there. इन 3 W's का मतलब ही यही होता है that it is using World Wide Web and that's why you are able to see this Google page. आप इस Google का पेज देख पा रहे हैं. Then is our World Wide Web versus Internet. Why? Because many times people consider that World Wide Web is Internet and Internet is World Wide Web. But this is not true. ये सही नहीं है. World Wide Web को आप Internet नहीं कह सकते और Internet को आप World Wide Web नहीं कह सकते. Why? Because your World Wide Web, क्योंकि अगर हम World Wide Web की बात करें, it is what? It forms a large part of Internet. इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये. अगर ये पूरा डायग्राम जो आप देख रहे हैं, अगर ये पूरा डायग्राम क्या है आपका, एक इंटरनेट है, तो इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका ये वर्ल्ड वाइड वेब है. यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब एक बहुत बड़ा पार्ट है आपका इंटरनेट का. So let's differentiate between internet and www so that you clear about that what actually is www and what is internet. Why we are calling that www is a part of internet. Internet is your collection of various networks connected together. Internet क्या है? एक कलेक्शन है बहुत सारे नेटवर्क्स का जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं. Whereas your www is a collection of डॉक्यूमेंट्स, ये एक डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन होता है दैट आर लिंक थ्रू हाइपरलिंक्स, जो कि हाइपरलिंक्स की मदद से आपस में जुड़े हुए होते हैं. विंड सर्फ इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट. यहाँ पे जो विंड सर्फ है, ही इज नोन एज योर फादर ऑफ इंटरनेट, आपके फादर ऑफ इंटरनेट माने जाते हैं. एंड टिम बर्नर्स-ली, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने प्रपोजल दिया था www का 1989 में,
ही इज नोन एज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, उन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का फादर माना जाता है। इंटरनेट इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड W is what? It is a service on top of that infrastructure. वो क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस है जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। इंटरनेट टर्मिनोलॉजी मीन्स द वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंटरनेट दैट आर इन्वॉल्व इन इट। सो योर फर्स्ट इज क्लाइंट, जो आपका सबसे पहला टर्म है वो क्या है? क्लाइंट। क्लाइंट हम पढ़ चुके हैं, बट लेट्स रिवाइज इट अगेन। एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, कोई भी ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क पे दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर, जो दूसरे कंप्यूटर से सर्विसेज की डिमांड करता है, मांगता है, दे आर नोन एज योर क्लाइंट। सर्वर, एनी कंप्यूटर दैट रिसीव्स रिक्वेस्ट, एक ऐसा कंप्यूटर जो आपकी रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है, एंड देन इट्स प्रोवाइड यू विद द आउटपुट, ये आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। सो दैट इज नोन एज सर्वर। वेब पेज, एनी डिजिटल पेज और डॉक्यूमेंट होस्टेड ऑन द इंटरनेट, कोई भी एक ऐसा डिजिटल पेज या डॉक्यूमेंट जो कि आपको नेट के ऊपर देखने को मिल जाता है, वो वेब पेज कहलाता है। सो लेट्स सी दैट व्हाट वेब पेज आई एम टॉकिंग अबाउट। चलिए मैं इसमें एक वर्ड लिख देती हूँ, हेलो। मैंने ये सर्च किया, इसको जब मैंने सर्च किया तो ये एक पेज खुल के आया आपके पास, तो ये क्या है? एक वेब पेज है आपके पास, ठीक है। और इसके में जितने भी आपके पास चीजें प्रोवाइडेड होंगी, ठीक है, जो भी आप खोलेंगे तो नेक्स्ट जो खुलेगा वो भी एक वेब पेज होगा, उसमें से आप किसी लिंक को क्लिक करेंगे, फिर आप उसे ओपन करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेब पेज। तो इस तरीके से आपके वेब पेज शो होते हैं। देन इज योर वेबसाइट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। वेबसाइट जो होती है वो क्या होती है? बहुत सारे पेजेस का एक कलेक्शन होती है जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, एंड इट इज डिजाइन विद अ सर्टेन गोल इन माइंड। और वेबसाइट हमेशा माइंड में एक पर्टिकुलर गोल रख के डिजाइन की जाती है। अगर आपकी शॉपिंग वेबसाइट है तो वो शॉपिंग को माइंड में रख के क्रिएट की गई है कि लोग क्या क्या शॉप कर सकते हैं। अगर आपकी एंटरटेनिंग साइट है तो ये माइंड में रख के चूज की गई है, बनाई गई है कि जो बच्चे हैं या बड़े हैं या और लोग हैं वो किस तरह का एंटरटेनमेंट पसंद करेंगे। So your basically sites looks like, अगर मैं यहाँ पे विकिपीडिया साइट ओपन करती हूँ, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लिंक दैट विल ओपन विकिपीडिया साइट। तो विकिपीडिया साइट जो बनाई गई है ये किस पर्पज से बनाई गई है? एजुकेशनल पर्पज से, बिकॉज वट एवर वी सर्च ऑन इंटरनेट वी गेट इट इन विकिपीडिया ऑल्सो। देन इज योर वेब पोर्टल, a website or service that offers a broad array of resources। एक वेबसाइट या एक ऐसी सर्विस जो कि आपको बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, यानी कि ईमेल, फॉरम, सर्च इंजन जैसे कि याहू या इंडिया टाइम्स। तो जो भी चीज आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है दैट इज नोन एज योर वेब पोर्टल, वो आपका वेब पोर्टल कहलाता है। वेब ब्राउजर, अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर, जिस सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं दैट इज अवर कंप्यूटर, सो इट इज नोन एज क्लाइंट कंप्यूटर। तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो कि क्लाइंट कंप्यूटर पे मौजूद होता है, दैट रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब, जो कि वेब में से इंफॉर्मेशन निकालता है, दैट इज नोन एज योर वेब ब्राउजर। तो अभी हम जिस पे वर्क कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन गूगल क्रोम, हम गूगल क्रोम पे वर्क कर रहे हैं, सो इट इज अ वेब ब्राउजर। ऐसे ही आपका मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, they are also your what? Web browsers. Next is web client. Web client, it is a program or component, ये एक प्रोग्राम या कंपोनेंट है क्लाइंट साइड पे, that request and uses services provided by web server, जो कि क्या करता है? वेब सर्वर से सर्विसेज को रिक्वेस्ट करता है और रिक्वेस्ट की हुई सर्विसेज का इस्तेमाल करता है, that is known as web client. URL, इट इज योर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि एक ऐसा यूनिक एड्रेस, यूनिक क्यों कहा गया इसे? बिकॉज एवरी URL इज डिफरेंट
विकिपीडिया का अलग एड्रेस है, गूगल का अलग एड्रेस है, याहू का अलग एड्रेस है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट का अलग एड्रेस है. सो इट इज यूनिक फॉर every website. It is a unique address of a web page on the internet. ये इंटरनेट पे हर एक वेब पेज का एक अलग यूनिक एड्रेस होता है. ब्लॉग. It is a web page that serves as a publicly accessible personal journal for an individual. ब्लॉग क्या होता है? एक ऐसा वेब पेज जो कि पब्लिकली असेसिबल होता है, यानी कि कोई भी इसको देख सकता है. ये हर एक इंडिविजुअल का एक अपना पर्सनल जर्नल होता है, अपना पर्सनल पेज होता है जिस पे आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं. देन इज ब्लॉगर. ऑथर ऑफ अ ब्लॉग इज नोन एज ब्लॉगर. जैसे बुक का ऑथर होता है, ऐसे ही अगर ब्लॉग कोई लिख रहा है तो वो पर्सन जो है वो ऑथर हो जाता है ब्लॉग का, और उस पर्सन को हम ब्लॉगर कहते हैं. ब्लॉगिंग. द एक्शन ऑफ राइटिंग ब्लॉग. वो एक्शन जो हमारे द्वारा परफॉर्म किया गया एक ब्लॉग को लिखने के लिए, दैट इज नोन एज योर ब्लॉगिंग. न्यूज ग्रुप. दे आर इंटरनेट डिस्कशन फोरम्स. ये इंटरनेट के ऊपर डिस्कशन फोरम्स होती हैं वेयर ग्रुप्स ऑफ यूजर्स विद कॉमन इंटरेस्ट. वहां जहाँ पे कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं जिनका एक जैसा इंटरेस्ट होता है. अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स वाले ग्रुप में जाएंगे. अगर आपका एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है तो आप एंटरटेनमेंट में जाएंगे. अगर आपका सॉन्ग्स में इंटरेस्ट है तो आप सॉन्ग्स में जाएंगे. सो सच काइंड ऑफ पीपल गैदर over here in these discussion groups to discuss on a common topic, जिससे कि वो उस common topic पे discussion कर सके. ईमेल. इट refers to messages distributed by electronic means. ये क्या है? एक तरह के messages हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक या और सारे रेसिपिएंट्स तक पहुंचाए जाते हैं. ईमेल एड्रेस. Every email has a unique electronic post office box. और एक ईमेल जो होता है उसका एक अलग इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है एक अलग एड्रेस के साथ, वेयर यू कैन सेंड एन ईमेल. जहाँ पे आप एक ईमेल सेंड कर सकते हैं. आप सबका एक ईमेल एड्रेस होगा, तो हर एक का ईमेल एड्रेस डिफरेंट होता है. कई बार अगर मैच कर रहा होता है तो जिस भी साइट पे आप अपना अकाउंट बना रहे हैं वो आपको ऑप्शंस देती है कि आप इसमें से कोई चूज कर लीजिए. So every email address is different from others. So all these topics are your internet terminology. ये सारे जो terms है ये internet terminology के अंदर आते हैं. Then is your getting access to internet. We all use internet, but how we are getting access to it? हमें internet का access कैसे मिल रहा है? How we are able to use it? हम कैसे उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? So all of us know a simple thing that if we want to use the internet we need a internet connection. हमें एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है. इंटरनेट कनेक्शंस हमें कहाँ से मिलते हैं? कौन हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करता है? सो इंटरनेट कनेक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स विच आर नोन एज ISP इन शॉर्ट. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलता है. लाइक योर भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, एयरटेल, MTS, वोडाफोन, टाटा डोकोमो, many others are there that are providing you internet facilities. So let us know what actually an ISP internet service provider is. ये होता क्या है? It is an organization which provides you with access to the internet via a dial-up using modem और hardwired और wireless connection. ये एक ऐसी organization है that provides you to use the internet, जो आपको इंटरनेट यूज करने की परमिशन देती है in 3 ways. With dial-up you can use modem, the directly with wired connection you can use it, और the third one is your wireless connection. आप wireless connection के थ्रू भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. The various services that are offered by ISPs, the first one is your internet access, domain name registration, dial-up access, and then your lease line access. So these are the 4 main services that they provide you. The other services that is all it provides are your telephone and television services.
जैसे कि आजकल जो है जियो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप जियो का कनेक्शन लेते हैं, सो इट इज़ प्रोवाइडिंग यू विद द टेलीफोन, विद दैट इज़ लैंडलाइन, विद द टेलीविजन सर्विसेज। आप नेट के थ्रू अपना टेलीविजन केबल टीवी चला सकते हैं, एंड एज वेल एज इट इज़ प्रोवाइडिंग यू विद द वाईफाई कनेक्शन ऑल्सो। देन इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को हम इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर के नाम से भी जानते हैं, दैट इज योर IAP। नाउ द कनेक्टिविटी ऑप्शंस दैट वी आर गोइंग टू लर्न, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा भी था। सो बेसिकली वी हैव थ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस। द फर्स्ट वन इज योर थ्रू डायल अप कनेक्शन। पहला जो है वो आपका थ्रू डायल अप कनेक्शन है, सेकेंड इज योर थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन, एंड थर्ड is through wireless connection. Let's understand all these three connectivity options individually. The first one is through dial-up connection. जहाँ तक अगर हम डायल अप कनेक्शन की बात करते हैं, इट इज़ अ टेम्परेरी कनेक्शन। ये एक टेम्परेरी कनेक्शन होता है, सेटअप बिटवीन योर कंप्यूटर एंड ISP सर्वर, जो कि आपके कंप्यूटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो सर्वर होता है उसके बीच में स्टैब्लिश होता है। डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस। ये एक इंटरनेट एक्सेस की ऐसी फॉर्म होती है दैट यूजेस द फैसिलिटीज ऑफ पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जो कि PSTN की सर्विसेज का इस्तेमाल करती है टू डू व्हाट, टू स्टैब्लिश अ कनेक्शन। एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए किसके साथ? एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ, या चाहे वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू किया गया एक डिवाइस का इस्तेमाल करके, जिसे कि हम मॉडेम कहते हैं। ओके, so modem is the what it is short form for your modulator and demodulator. MO stands for modulator and DEM stands for demodulator. Users dial a particular number. इसके लिए यूजर्स क्या करते हैं? ISP के द्वारा दिया गया एक पर्टिकुलर नंबर डायल करते हैं, एंड देन दे कैन डू व्हाट, यूज इंटरनेट, क्योंकि उन्हें इंटरनेट एक्सेस करने की परमिशन मिल जाती है। इट मेक्स इंटरनेट अवेलेबल टू यू। ये आपको इंटरनेट तब तक अवेलेबल कराता है एज लॉन्ग एज यू रिमेन कनेक्टेड, जब तक कि आप उससे जुड़े हुए रहेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड विद अ डायग्राम। ये एक डायग्राम है जिसमें देखिए आपके पास जो है आपको, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज दीज मार्क्स। Okay, now you have been given what? You have been given two systems. One is on your left and other is on your right. दोनों ही systems आपके किससे connected हैं? मॉडेम से। ये देखिए मॉडेम से connected है, और कंप्यूटर और मॉडेम के बीच में क्या हो रहा है? आपके डिजिटल सिग्नल्स सेंड हो रहे हैं, and then it is doing what? They are सेंडिंग सम इंफॉर्मेशन टू द ISP, और ISP जो है वो आपका इंटरनेट एक्सेस करने की आपको परमिशन प्रोवाइड कर देता है। यानी कि एक तरफ से आपके ISP में रिक्वेस्ट जा रही है, और दूसरी तरफ से उस रिक्वेस्ट को ISP आपको कंप्लीट करने के लिए परमिशन दे रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ऑन योर राइट यू हैव this internet access option. Right click on it and use open network and internet settings. यहाँ से आप internet and network settings open कर लीजिए। Here on your left you are getting the option dial up. यहाँ से आपको option मिल रहा है dial up का, click on it. As you click on it you are getting the option set up a new connection. Click this and here you are getting the four options. यहाँ पे आपको four options मिले। First connect to the internet, then set up a new network, manually connect to a wireless network and then connect to a workplace. तो आप इनमें से जो भी ऑप्शन चूज करेंगे उसके बाद आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट, जैसे कि मैंने किया से कनेक्ट टू द नेटवर्क, यानी कि सेटअप अ ब्रॉडबैंड और डायल अप कनेक्शन टू द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू मेरे को एक डायल अप कनेक्शन करना है। जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करूंगी, इट इज आस्किंग मी टू do two things, what, browse the internet and then set up a new connection. तो इस तरीके से आप अपना एक डायल अप कनेक्शन सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू कनेक्शन करना चाहते हैं,
When we talk about the term broadband, जब भी हम broadband की बात करते हैं, so it is short for broad band breadth. ये एक शॉर्ट टर्म है ब्रॉड बैंड ब्रेथ के लिए. अब आप पूछेंगे मैम व्हाट इज बैंड ब्रेथ, बैंड ब्रेथ होती क्या है. सो बैंड ब्रेथ वाज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट अ सिग्नल और सर्किट कैन कैरी. वो अमाउंट ऑफ डाटा जो कि एक सिग्नल या एक सर्किट कैरी कर सकता है अपने अंदर, उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा सकता है, दैट इज नोन एज योर बैंड ब्रेथ. उसे हम बैंड ब्रेथ कहते हैं. योर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, जो आपके ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होते हैं, दे आर फास्टर, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू योर डायल अप कनेक्शन, आपके डायल अप कनेक्शन के कंपैरिजन में. व्हाई? बिकॉज देयर सिग्नल्स कैरी मच मोर डाटा देन कन्वेंशनल फोन लाइन्स, क्योंकि फोन लाइन्स के कंपैरिजन में जो ब्रॉडबैंड के सिग्नल्स होते हैं, जो या सर्किट होता है, वो ज़्यादा डाटा अपने अंदर कैरी करते हैं. और अगर आप इसकी स्पीड को मेजर करना चाहें तो इसकी स्पीड आपकी एमबीपीएस में मेजर होती है, जिसे कि हम मेगाबाइट्स पर सेकेंड कहते हैं. मेगाबाइट्स यानी कि आपका डेटा. ब्रॉडबैंड सर्विस इज अवेलेबल टू यू इन 3 मेन प्लेटफॉर्म्स. ये सर्विस आपको 3 मेन प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल होती है, केबल मॉडेम, डीएसएल एंड सैटेलाइट. These three we will discuss later on, but first of all let's understand this with a diagram. इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं. इसमें देखिए आपके पास ये एक टेलीफोन लाइन है, यहाँ पे आपका एक सिस्टम है, ये सिस्टम आपका जुड़ा हुआ है एक मॉडेम से, और वो मॉडेम आपका यहाँ से जुड़ा हुआ है. इन टेलीफोन और मॉडेम को जोड़ने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कनेक्शन अवेलेबल है. तो यहाँ से हमारी जितनी भी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं उसके क्या है, हमें टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड हो रही है, साथ में हम अपना लैपटॉप में ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो हम लैपटॉप को इससे डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं या इनडायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दोज 3 टर्म्स. फर्स्ट इज योर केबल मॉडेम. अगर हम केबल मॉडेम की बात करते हैं, यूजेस द सेम कनेक्शन दैट डिलीवर्स केबल टीवी. ये सेम कनेक्शन इस्तेमाल करता है जो कि केबल टीवी के साथ जुड़ा हुआ होता है. सो हमें क्या है, अगर हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन यूज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें केबल टीवी सब्सक्राइबर बनने की ज़रूरत नहीं है. We can use it without becoming a cable TV subscriber. This platform is fast and reliable. ये बहुत तेज है और रिलायबल है, आप इसमें आसानी से इजीली वर्क कर सकते हैं. लेकिन ये सारे एरियाज में अवेलेबल नहीं होता. You will not get it everywhere. The second one is your DSL, that is known as Digital Subscriber Line. It provides you internet access by transmitting digital data over wires of a local telephone network. जो आपका एक लोकल टेलीफोन नेटवर्क होता है उसकी वायर्स के थ्रू आपके डिजिटल डाटा को ट्रांसफर किया जाता है, एंड देन यू आर एबल टू यूज योर इंटरनेट. DSL service is delivered along with wired telephone service on the same telephone line. ये सर्विस आपको कैसे अवेलेबल की जाती है, जो आपकी वायर्ड टेलीफोन सर्विस होती है, जो आपके किसी की टेलीफोन लाइन से जुड़ी हुई है, उसी सेम लाइन से आपको ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है. एक कस्टमर प्रेमिसेस में, एक कस्टमर के घर पे एक DSL क्या करता है, यानी कि DSL जो फिल्टर होता है वो क्या करता है, इट रिमूव्स हाई फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस. जो हाई फ्रीक्वेंसी आ रही होती है उसको हटा देता है, सो दैट यू आर एबल टू यूज द टेलीफोन एंड डाटा ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली, कि आप टेलीफोन और डाटा ट्रांसमिशन दोनों का इकट्ठे इस्तेमाल कर पाए. फॉर यूजिंग अ DSL कनेक्शन, एक DSL कनेक्शन का इस्तेमाल करने के लिए वी नीड अ मॉडेम, हमें एक DSL मॉडेम चाहिए होता है, एंड अ सब्सक्रिप्शन, और हमें सब्सक्रिप्शन भी चाहिए होता है. यानी कि अगर आप इस डाटा को इस्तेमाल करना चाहते हैं, यू नीड टू बी अ केबल टीवी सब्सक्राइबर. आपको केबल टीवी सब्सक्राइबर बनने की ज़रूरत है, जबकि केबल मॉडेम में ऐसा नहीं होता. थर्ड इज योर सैटेलाइट. इट इज़ अवेलेबल वेयर केबल एंड DSL आर. ये आपको वहाँ अवेलेबल हो जाता है जहाँ पे आपको केबल मॉडेम या DSL अवेलेबल नहीं होता. और ये आपको कब तक अवेलेबल होता है, टिल यू हैव अ क्लियर व्यू ऑफ द सर्दर्न स्काई. जब तक आपके पास आसमान साफ है, यू विल बी एबल टू गेट द सर्विसेज विदाउट एनी प्रॉब्लम. आपको सर्विस मिलती रहेगी. लेकिन
अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो केबल मॉडेम और डीएसएल दोनों के कंपैरिजन में सैटेलाइट हमारी स्लो होती है। और ये इट इज कैन बी इंटरप्टेड बाय बैड वेदर, अगर आपका मौसम खराब है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। एंड रिक्वायर्स द इंस्टॉलेशन ऑफ ए सैटेलाइट डिश ऑन योर हाउस और इन योर यार्ड, आपके यार्ड में या आपके घर में हमें क्या लगाना पड़ता है, सैटेलाइट डिश लगाना पड़ता है इफ यू वांट टू यूज द सर्विसेज डायरेक्टली फ्रॉम द सैटेलाइट। आपने देखा होगा कि आपके पास कई टीवी कनेक्शंस ऐसे हैं जिसमें आपको एक क्या लगवानी पड़ती है, सैटेलाइट डिश लगवानी पड़ती है अपनी छत पे, और जैसे ही मौसम खराब हुआ आपका केबल चला जाता है, यू आर नॉट एबल टू सी एवरीथिंग, आप हर एक चीज नहीं देख पाते। यू हैव टू वेट दैट yes the weather becomes fine or good, then you will be able to get the connection. Then is your through wireless connection, अगर अब हम बात करेंगे किसकी, वायरलेस कनेक्शन की। वायरलेस कनेक्शन के थ्रू हम अपनी ये सारी सर्विसेज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर WiMAX. WiMAX is your worldwide interoperability for microwave access. It is a wireless communication. ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन है और ये किस लिए डिज़ाइन किया गया है, टू प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जिससे कि आप मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का इस्तेमाल कर सकें, या आप चाहे किसी भी सिटी में हो, किसी भी कंट्री में हो, आप अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज सिस्टम, ये एक बहुत लंबी रेंज का सिस्टम है जो कि बहुत सारे किलोमीटर्स को कवर करता है। एंड इज टिपिकली यूज, और ये ज़्यादातर वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर आपका डीएसएल या केबल इंटरनेट एक्सेस वर्क नहीं करता। दिस could be difficult in laying out cables for home or offices located in remote locations. ये वहाँ पर सेटअप करना मुश्किल हो जाता है उन होम्स में, उन ऑफिसेज में जो कि रिमोट लोकेशंस में बने हुए हैं। एंड दे नीड द इंटरनेट एक्सेस, लेकिन फिर भी उन्हें इंटरनेट एक्सेस चाहिए, तो वहाँ पे ये इंस्टॉल किए जा सकते हैं, लेकिन इनको इंस्टॉल करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। अगर हम एक फिक्स्ड वाईफाई मैक्स की स्टेशन की बात करें, सो इट कैन कवर अप टू 30 माइल्स, ये 30 माइल्स तक की रेंज को कवर कर सकता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मोबाइल वाईमैक्स स्टेशन, इट कैन ब्रॉडकास्ट द चैनल्स अप टू 10 माइल्स, ये 10 माइल्स तक अपना कवरेज प्रोवाइड करता है। सो द डायग्राम टू अंडरस्टैंड अ वाईमैक्स इज दिस, ये वाईमैक्स जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। यहाँ देखिए बीच में आपको एक कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है, एक एंटीना सा दे रखा है, और ये आपको कई सारी चीज़ों से जोड़ रहा है। बिजनेस एक्सेस एंड बैकऑल, आपके बिजनेस में आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। कंज्यूमर ब्रॉडबैंड एक्सेस, कंज्यूमर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। हॉटस्पॉट की जगह कहीं पे आप किसी शॉप में बैठे हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, किसी होटल में बैठे हैं। एंड पोर्टेबल ब्रॉडबैंड एक्सेस, पोर्टेबल आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं और आराम से यहाँ से कनेक्शन स्टैब्लिश करके आप कहीं पे भी हैं, यू विल बी एबल टू यूज द इंटरनेट वेयर एवर यू आर इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। देन इज वाईफाई, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर वायरलेस कनेक्शन। वाईफाई तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एवरीवेयर यू कैन सी दैट वाईफाई इज यूज्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज known as a popular technology, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, because it's allow electrical devices like your computers, mobile phones, even your laptops, your tablets to exchange data wirelessly over a network, कि बिना वायर की मदद के आप एक नेटवर्क में अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं विद हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। आपको इंटरनेट कनेक्शन में भी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड प्रोवाइड होती है। Your Wi-Fi devices such as your personal computer, your smartphones, your video game console, they can also get connected to a network resource such as internet through a device, जैसे कि आप एक डिवाइस के थ्रू, जिसे कि हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट कहते हैं, उसके जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ यूज वेयर केबल्स कैन नॉट बी रन, ये वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर आपकी केबल्स नहीं लगाई जा सकती, जैसे कि किसी ओल्ड बिल्डिंग या आउटडोर एरियाज में, सो दैट यू आर एबल टू गेट द नेटवर्क एंड इवन एबल टू एक्सेस योर इंटरनेट। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड वेयर यूजर्स रिक्वायर मोबाइल कनेक्टिविटी, ये वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे कि यूजर्स को वाईफाई कनेक्टिविटी चाहिए होती है।
Wi-Fi connectivity is used in home and offices, hotels, college and school campus typically for internet access. इन सब जगहों पे हम वाईफाई कनेक्टिविटी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? So that we are able to use internet. Even in your shopping malls, coffee shops, resorts, mostly you get free services or even paid services also you can get. आपने देखा होगा अगर आप कहीं बाहर गए हैं किसी होटल में स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल होती है. कुछ होटल्स जो है वो आपको फ्री में ये सर्विस अवेलेबल करते हैं एंड सम चार्ज यू सम मनी टू यूज दिस services. So the diagram that you can see over here is showing you the Wi-Fi access point. This over here in the center you have a Wi-Fi, and with this how many devices of yours are connected? Your laptops and PCs are connected, your smartphones, your other appliances, your sensors, each and everything that can sense that yes, nearby us there is some Wi-Fi connection. With all those devices you are able to use your internet. Let's see the connection over here. On the right you can see that you have a Wi-Fi. When you click on this Wi-Fi, it is showing you some data. अगर आप इसको on करें, it means your Wi-Fi connection is on and you are connected to some internet. If you want to see that how many networks are available to you, you can click on show available networks. You can click on hardware properties if you want to know about the properties of the hardware that are connected to your internet, and manage known networks. You want to manage some networks that are already paired with your devices. Then you have hotspot 2.0 networks. It means you can get to connected to a hotspot also. It means if you are at airports and hotels, cafes, there also you can get the connectivity through this. Even your mobile hotspot, if you click on this, here also you will get this option कि आपको कैसे अपना डाटा शेयर करना है और अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी आप अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं. Then is your data transfer on the internet. How we can transfer data on the internet. हम हमेशा बात करते हैं डाटा ट्रांसफर की, इंटरनेट की, लेकिन हमेशा क्या आपके माइंड में ये आता है कि कैसे हम एक वर्ल्ड के संसार के एक कोने में बैठ के कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं एंड ओनली इन इन फ्यू सेकेंड्स, और केवल फ्यू सेकेंड्स के अंदर हाउ यू आर गेटिंग दिस एंड why so much quickly, how much you are getting this data, कैसे आपको ये सब डाटा मिल रहा है. So there is a very basic rule, बहुत ही बेसिक रूल है for what data का, that files, emails, web pages, anything, okay, transmission across the internet. आपके इंटरनेट के थ्रू ये जितनी भी चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, all have a very basic rule for them and actually a distinctive feature, और एक बहुत ही अलग फीचर होता है आपका TCP/IP प्रोटोकॉल्स का, that is helping us to move data, जो कि हमें डाटा को मूव करने में मदद कर रहा है. और वो सबसे ज़्यादा फीचर क्या है, डाटा इज नेवर ट्रांसमिटेड एज सच. जैसा डाटा आप देखते हैं, डाटा जो है वो सेम वैसे का वैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाता. नाउ यू विल आस्क कि मैम अगर डाटा वैसे का वैसा ट्रांसफर नहीं होता है देन हाउ वी आर ट्रांसफरिंग आवर डाटा, तो हमारा डाटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है. लेट्स सी इन फ्यू स्टेप्स. फर्स्ट, द डाटा इज ब्रोकन अप इनटू बिट्स ऑफ सेम साइज्ड पीसेस. आपका जो डाटा होता है वो सेम साइज के पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो वो डिवाइडेड डाटा होता है दैट इज नोन एज योर पैकेट्स. उसे हम पैकेट्स कहते हैं. और जब पैकेट्स में डाटा डिवाइड होता है तो हर एक पैकेट को एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से. अ हेडर इज एडेड टू ईच पैकेट. हर एक पैकेट को एक हेडिंग दी जाती है, एक हेडर उसके साथ जोड़ दिया जाता है. एक्सप्लेनिंग वेयर द डाटा हैज कम फ्रॉम, ये बताते हुए कि डाटा कहाँ से आया है. वेयर इट शुड एंड अप, इसे कहाँ जाना है. एंड वेयर इट फिट्स विद द रेस्ट ऑफ द पैकेट्स, और बाकी सारे पैकेट्स के साथ ये कहाँ जाके आसानी से स्टोर हो सकता है.
ईच पैकेट इज सेंड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, हर एक पैकेट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजा जाता है until it finds its destination, और इसे तब तक भेजते रहते हैं जब तक कि इसको अपना पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं मिल जाता। डेस्टिनेशन यानी कि जहां हमें अपना वो डाटा भेजना था। ईच कंप्यूटर ऑन द वे डिसाइड्स वेयर नेक्स्ट टू सेंड द पैकेट, और रास्ते में जितने कंप्यूटर पड़ेंगे हर एक कंप्यूटर को क्या परमिशन होती है कि वो डिसाइड कर सकता है कि हमें ये पैकेट आगे कहाँ भेजना है। ऑल पैकेट्स मे नॉट टेक द सेम रूट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही डाटा के जो पैकेट्स बनाए गए थे वो सारे पैकेट्स एक ही रूट से जाएं। दे कैन ट्रेवल थ्रू डिफरेंट डिफरेंट रूट्स, वो अलग अलग रूट्स ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये अलग अलग सिस्टम्स हैं, ओके, ये सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अब मुझे अपने जो ये मेरा फर्स्ट सिस्टम है इसके थ्रू कुछ डाटा ट्रांसफर करना है, तो हो सकता है कि या तो इसका जो डाटा है वो डिवाइड होके या तो इस डायरेक्ट सीधे लाइन से चला जाए, डायरेक्ट ही अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाए। दैट इज योर सिस्टम टू ओवर हियर। और ये भी हो सकता है कि पहले वो इस सिस्टम से इस सिस्टम से इस सिस्टम तक जाए, and then it goes from this system to this system and then reach on the second system। तो इस तरीके से पैकेट्स अलग अलग रास्ता अपना पकड़ते हैं। एट द डेस्टिनेशन द पैकेट्स आर एग्जामिन्ड, जब अपनी डेस्टिनेशन पे पैकेट्स पहुंच जाते हैं, अपनी जहाँ पे उन्हें पहुंचना होता है, जब वहाँ पहुंच जाते हैं तो पैकेट्स को चेक किया जाता है। इफ एनी पैकेट्स आर मिसिंग और डैमेज, अगर कोई भी पैकेट मिसिंग होता है, पहुंचा नहीं होता या डैमेज हो चुका होता है, अ मैसेज इज सेंड आस्किंग फॉर देम टू बी रीसेंड, तो एक मैसेज भेजा जाता है कि आप रीसेंड करिए अपने डाटा को। दिस कॉन्टिन्यूज अंटिल ऑल द पैकेट्स हैव बीन रिसीव्ड, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि सारे के सारे पैकेट्स सही कंडीशन में डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते। और जब डेस्टिनेशन पे वो पहुंच जाते हैं तो उनको रीअसेंबल किया जाता है, यानी कि अरेंज किया जाता है उनकी ओरिजिनल फॉर्म में। और ये सब जो होता है ऑल दिस हैपेंस इन सेकेंड्स, ये पूरा प्रोसेस सेकेंड्स के अंदर हो जाता है। आपको पता भी नहीं लगता कि क्या हुआ, आपको बस ये पता लगता है कि हाँ मैंने अपनी मेल के थ्रू एक मेल भेजी थी, मैसेज सेंड हो गया, लेकिन उसके अंदर का क्या प्रोसेस हुआ दैट यू नेवर कम टू नो, आपको कभी पता नहीं लगता। टू असेस द इंटरनेट यू नीड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, आपको जब भी इंटरनेट इस्तेमाल करना है उसके लिए आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यू नीड टू गैदर एंड अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट केयरफुली, आपको क्या चाहिए कि आप अपनी रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए, उसको इकट्ठा करिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू एन इंटरनेट कनेक्शन प्लान। और ये सब आपको कब करना होता है, एक इंटरनेट कनेक्शन प्लान लेने से पहले। ऑल दिस यू हैव टू डू। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द डायग्राम, ये अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे तो उस सब के लिए हमें क्या कौन मदद करता है, गेटवे मदद करता है। नाउ यू विल आस्क मैम व्हाट अ गेटवे इज। सो अ गेटवे इज अ डिवाइस that connects dissimilar networks, that is networks having different communication architecture are connected using gateways। different different networks जो होते हैं वो गेटवे का इस्तेमाल करके आपस में जोड़े जाते हैं। As you can see over here, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, here you have a gateway and you have two servers over here, दो servers हैं आपके पास, and both the servers have a different IP address, दोनों servers के पास देखिए different different IP address है। हर एक server का हर एक जो IP address होता है वो same नहीं होता, that is different, and then that server is connected to a device over here on both sides, and then that device is connected to your different PCs, ये अलग अलग PCs से connected है। So the data that you will send from here, इन PCs से जो आप data यहाँ पे भेजेंगे, that will connect to the server, then server will connect to the gateway, and then that gateway will connect to the other network that is being established by over here with this server। तो इस तरीके से आपका जो डाटा ट्रांसफर का काम है वो वर्क करता है। So we are finishing our this session over here. With this, our
टॉपिक ऑफ नेटवर्क फंडामेंटल्स इज फिनिश्ड। इसके साथ हमारा नेटवर्क फंडामेंटल्स का टॉपिक फिनिश होता है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट इंस्टेंट मैसेजिंग। If you like this video, please like, share, comment and subscribe our channel. If you are an old visitor, please हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए and ask your friends also to join with us so that they also get the knowledge while sitting at home. If you are a new visitor, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, please press the bell icon and subscribe us. I am asking you to press the bell icon so that you keep getting the notifications automatically. Meet you in the next session. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. Bye bye. Take care.